خوش ہیں. ہاللیلویا. میں گزارش کروں گا جتنے میرے بھائی باہر اندر جگہ ہیں برائے مہربانی خداوند آپ کو برکت دے. جو مسیح یسوع کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ اندر ضرور ہیں. ہماری چرچ میں 2 رول ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں ان کو اپلائی کیا جائے. پہلا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میسج ڈیلیور کیا جائے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جو بھی پاس بیٹھا ہے, مسکراتے ہیں, اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں یسوع کے نام میں خوش ہوں. ہاللیلویا. آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی آپ کے پاس ہے اس سے ہاتھ ملائیے, اس کو دیکھیے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. او ہاللیلویا. اور آپ کہیں گے میں یسوع کے نام میں بھئی جڑے خوش ہیں انہاں دی آواز آنی میں یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. وقت زیادہ لگا نہیں, کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ چند لوگ سمجھتے ہیں وقت زیادہ لگا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. میں جانتا ہوں جب لوگ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو کوئی بتا سکتا ہے میکسیمم وہ کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 3 ساڑھے 3 گھنٹے. ایسا ہی ہے نا؟ تو کوئی آوازیں بھی دیتا رہے, ہم کہتے ہیں بھائی اینڈ رہ گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ جتنا وقت خدا کے حضور میں گزاریں گے میرا ایمان ہے اتنی زیادہ برکت لے کر جائیں گے. ہاللیلویا. ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے. پریز دی لارڈ. جو کوئی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیے اور کہیے خداوند اب جب میں تیرے کلام کو سنوں تو میرے پاس بیٹھی بہن یا میرے پاس بیٹھے بھائی کو کوئی بات یاد نہ آئے سوائے تیرے کلام کے, اور تیرا کلام میری زندگی میں جڑ پکڑے یسوع کے نام میں. آپ سب بولیں گے آمین. پریز دی لارڈ. پادری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم شفا کے تعلق سے سیکھیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ان گنت معجزات ہیں جن کی شاید آپ بیان کرنا شروع کریں تو بڑا وقت درکار ہے کہ آپ ان باتوں کو بیان کر سکیں, لیکن پھر بھی لوگ ادھورے ہیں, پھر بھی لوگ کمپلیٹلی شفا نہیں پا رہے. ابھی کنونشن پروگرام ہوتے ہیں, عبادات ہوتی ہیں تو سارے لوگ پھر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. کس لیے لگے ہوتے ہیں؟ شفا کے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ آمین. ہاللیلویا. یسوع کی قدرت آسمان سے بڑی کثرت سے برس رہی ہے اور لوگ پھر بھی لائنوں میں لگے ہیں. آپ جانتے ہیں میری منادی, میری خدمت کیا ہے؟ میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہتا ہوں. میں انہاں دے اندروں ترلے کڈنا چاہتا ہوں. ہر کسی کی منتیں کرتے پھرتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کر. میں کہتا ہوں یسوع نے تجھے برکت دیا تو خود اپنے لیے دعا کر. ہاللیلویا. پاجی پکا ہی ہے نا ذرا. پریز لارڈ. ہاللیلویا. وہ بھائی ذوالفقار جانتے ہیں جو میرا جو پرپٹ ہے چرچ کے اندر اس کی کیل جو ہے نا وہ اکھڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند کی قدرت کثرت سے کام کرے تو معجزات ہوتے ہیں. ہاللیلویا. آپ پادری بدلتے رہتے ہیں, اس سے نہیں اس سے دعا کروائیں گے, اس سے نہیں اس سے دعا کروائیں گے. میں پادری انور فضل کے پاس پہنچ جاؤں تو میں شفا پالوں گی. اور پادری شہزاد کی تو کیا بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے شک وہ خدا کے سور میں ہے, بے شک خدا نے انہیں برکت دی ہے, بے شک خدا نے انہیں چنا ہے, بے شک خدا نے انہیں سلیکٹ کیا ہے. لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوں گے. ہاللیلویا. آئیے مرکز 16 کے 16 نکال لیجئے. تھوڑا ٹائم لوں گا. اگر آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ رہے تو, اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو ٹائم بڑھ جائے گا. ذرا ساتھ رہیے گا. پریز دی لارڈ. جی جس نے نکال لیا وہ بلند آواز سے اس کی تلاوت کرے. مرکز 16 باب اس کی 16 آیت میں یوں مرقوم ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا جی, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. آگے بھی پڑھیے. اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے. ہاللیلویا. آپ میں سے سنیے آگے بعد میں پڑھیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایمان لائے ہیں یسوع پر؟ ہاللیلویا. پھر کہتے جان دی لوڑ ہے.
लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान में क्या होगा, मौजज़े होंगे। आप सारी जिंदगी दुआ करते रहे, मौजज़ा नहीं होगा जब तक आप खुद ईमानदार नहीं होंगे। और जब दो ईमानदार जमा होंगे तो उनके दरमियान में मौजज़ा होगा। बगैर ईमान के मौजज़ा नामुमकिन है। और मेरे अजीजों याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में जितने मौजज़े दर्ज हैं वो सारे ईमानदारों के बारे में दर्ज हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिसने ईमान नहीं लाया उसने मौजज़ा भी खाई जो फिर शुरू कर दिया दवाइयां। हाँ, लगे ना वो फिर ब्लड प्रेशर चेक कराते। मैं चाहता हूं आप ईमान ले आए और यीशु के नाम से अपना मौजज़ा लेकर जाएं। आज की शाम मेरे अज़ीज़ों याद रखिए, मौजज़ा पाने की शाम है। मुझे बात याद आई, मरियम और मार्था का भाई मर गया और यीशु से क्या कहने लगी कि अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थी। वो जानती थी कि यीशु ने ये कहा है कि ईमानदारों के दरमियान में मौजज़े होते हैं। वो जानती थी कि यीशु यहाँ पर मौजूद होता तो हम उस पर ईमान रखती हैं, तो हमारा भाई भी उस पर ईमान रखता था। अगर यीशु होता तो फिर ये मरता नहीं। हालेलुया। और वो ये नहीं जानती थी कि जिसके सामने बात कर रही है वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। उनको ये नहीं पता था कि जिसके सामने हम अपने मुकदमा को रख रहे हैं ये सिर्फ मुकदमा सुनेगा नहीं बल्कि यही खड़े खड़े इसका फैसला कर देगा और अपने जलाल को जाहिर कर देगा। हम सीख रहे हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान में जिन्हें मौजज़ा पाना उन्होंने आवाज आनी चाहिए, बाकी जिवें आए उवें टुर जाएंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़े होंगे। अब वो भी ईमानदार और यीशु तो ईमान का बानी है जो उनके सामने खड़ा है और वो खाल के हकीकी है। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा कि पादरी साहब यीशु ने लाजर का नाम लेकर क्यों कहा कि कब्र से बाहर आ जाए? मैंने कहा तू नहीं जानता, यीशु खाल के हकीकी है। कायनात का जर्रा जर्रा यीशु की कुदरत से तख्लीक हुआ है, यीशु के कहने से तख्लीक हुआ है, यीशु के जलाल से बना है। क्योंकि लिखा है कि आसमान और जमीन की सारी ममूरी यीशु में सुकूनत करती है। हालेलुया। और फकीर फरीसी ये कहते थे कि कितने दिन तक मुर्दे की रूह फिरती रहती है जी? जिन्हें जानते दसिया जी कितने दिन तक? कितने दिन तक? 3 दिन तक। फिर उदों बाद मुर्दे की रूह पताल से चली जाती है। ते कहते भाई यीशु अगर 3 दिनों के विच विच लाजर नूं जिंदा कर देंदा ते फिर उन्हें यही कहना सी कि रूह इत्थे किते फिरदी पई सी ते यीशु ने वापस बुला ली। अब उनका ईमान, उनका अकीदा ये था कि 3 दिन के बाद रूह जो है वो पताल के अंदर चली जाती है और फिर उसका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। फिर वो दिखाई नहीं देती, फिर वो सुनाई नहीं देगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु वहां पर 4 दिन के बाद पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता उसने नाम क्यों लिया? मैंने कहा जब यीशु उस कब्र के मुंह पर खड़ा था जिसके अंदर लाजर था, उसमें और भी कई मुर्दे थे और वो सदियों से कब्र बनी हुई और लोग उसमें मुर्दे रखते थे और सबकी रूहें पताल के अंदर अलग हो गई थी। मेरा ये ईमान है। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ लाजर की नहीं बल्कि मेरा ईमान है उन सबकी रूहें पताल में अलग हो गई थी। अगर यीशु लाजर का नाम न लेता तो जितनी रूहें पताल में थी वो बाहर आ जाती और लोग जिंदा हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। हम सीख के लिए कि ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़े होंगे। इसलिए यीशु ने जिस लाजर का नाम लिया, इसका सबूत दूं आपको। लिखा बाइबल मुकद्दस में से जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसके जी उठने से और भी कई मुर्दे जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ईमान का तकाजा ये है, मेरा ईमान ये कहता है कि यीशु जब कब्र के सामने खड़ा था तो फरिश्ते अलर्ट हो चुके थे। फरिश्ते जानते थे कि जो बात यीशु के मुंह से निकलेगी वह पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा अभी वक्त नहीं है, मैं लाजर का नाम लूंगा। क्या लाजर कब्र में से बाहर आ? तो वो कब्र में से बाहर निकल आया।
और यीशु के नाम को जलाल मिला। आज रात आपका यीशु यहाँ पर मौजूद है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज रात वो आपकी बीमारी को कहने वाला है कि इसमें से बाहर आ, तो मेरे ईमान है कि बीमारी बाहर आएगी और यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। किनके दरमियान में मौजूदे होंगे? ईमान लाने वालों के। हाय हाय करने वाले दे मौजूदे नहीं जे होने, याद रखना जी। ये हर प्रोग्राम के सिर अगे लेके आएंगे। फिर कहते भाई पादरी ने हाथ रख के दुआ नहीं की, उसको टाइम नहीं। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपका ईमान ये है कि यीशु यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपको छूने की जरूरत नहीं है। आप अपना मौजूदा लेकर जाएंगे। मुझे एक बहन की बात याद आई, मैंने उसकी दुआई सुनी। वो गैर मसीही थी और यीशु पर ईमान ले आई और वो लोगों को यीशु का कलाम सुनाने लगी और उसके अजीजों कारब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब इसे खत्म कर देंगे, अब इसे मार डालेंगे, अब ये हमारे खानदान, हमारे कबीले, हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बेइज्जती का बाइस है। इसने हमें छोड़कर यीशु को कबूल कर लिया है। अब क्या करो, चौराहे में आग लगाओ और आग बहुत सी लकड़ियों की हो और इतनी आग हो कि उसमें जिसे भी फेंका जाए वो जल जाए और भस्म हो जाए। और सारे इलाके के लोग वहां पर जमा हो गए। उन्होंने आग जलाई और आग जलाकर उस लड़की को वहां पर लेकर आए और वो कह रहे थे कि इसे जला दो, इसे जला दो, इसे जला दो। और जब वो उसे जलाने लगे, जब उसे उस आग के पास लेकर आए, जब वो उसे उस लकड़ियों पर रखने लगे, जब वो सारे जमा होकर नारा लगाने लगे कि अब से कोई यीशु का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जो यीशु का नाम लेगा उसे जला दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे नेस्त कर दिया जाएगा। और जब उसे आग पर रखा तो आग उसे जला ना पाई, और जब आग जला ना पाई तो उन्होंने उसके पीछे किसी को खड़े देखा और जिसको खड़े देखा वो मेरा और आपका यीशु था, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान में। हालेलुया। भाई बड़ा होली हालेलुया कर दिया तुसी। किसी दिन लड़ाई होई है तो बड़ियां आवाज़ां निकलदियां साड़ियां भैणां दी। हालेलुया का मतलब कौन जानता है? जरा अपना हाथ दिखाइएगा। खुदा की इस बेटी के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया का मतलब क्या? खुदा की, खुदा की। मुझे याद है जब शुरू में हम आए तो बहन जान दिया कि हालेलुया पर पाबंदी थी शायद। एक बड़ा हालेलुया कर दिया भाई। तो मैंने जब पहली मरतबा मैसेज सुनाया, मैंने कहा पहले हालेलुया का मतलब जानो। जब फरिश्तेगान खुदा के हुजूर में उसकी इबादत करने के लिए झुकते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये किनकी जुबान है? फरिश्तों की। और जब हम हालेलुया कहते हैं तो इसका मतलब खुदा की तारीफ हो। आप कहेंगे हालेलुया, फिर होती है हालेलुया, हालेलुया। ईमान लाने वालों के दरमियान में क्या होगा? मौजज़े होंगे। आज जितने ईमानदार हैं वो बेशक बीमार हैं, लेकिन उनकी बीमारी ना रह जाएगी और वो अपना मौजज़ा लेकर जाएंगे, यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। मेरी चीज़ों याद रखिएगा, जो कोई यीशु पर ईमान लाया है ओदे तरले मुक ले। अब उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट वो खुदा के हुजूर में झुक जाए। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे घर में सबसे पहले खुदा के खादर पास्टर चांद यीशु को कबूल किया और उनके बाद मैंने यीशु को कबूल किया। तो लोग शादी ब्याह पर हमें बड़ी खुशी से बुलवाते थे। हमारे खानदान के लोग जाते थे। मेरे अब्बू का अपना कारोबार बिजनेस था शूज सैंडल का, मैं भी वही काम करता हूँ। तो उनके पास माल रहता था और लोग बुलाते थे, यार उन्होंने बुलाओ जरा ज्यादा खर्च कर दिया। और मेरे अब्बू वो किसी ने एक कापी सुटनी उन्हें 400 देनी दिखाना ना खुद को, तो बड़े शौक से बुलवाते और मैं नहीं जाया करता था शादी ब्याह और ना ही मेरे भाई जाते थे। लेकिन हम यीशु पर ईमान ले आए। तो एक दिन हम अपने कमरे में झुक कर दुआ कर रहे थे और घर वाले घर में नहीं थे। तो मेरा भाई दुआ करना शुरू हुआ। वो 3-4 घंटे तक दुआ करते थे। तब मेरी रूटीन ऐसी नहीं थी, मैं ऐसे दुआ नहीं करता था। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठता और फिर दूसरे कमरे में चला जाता। मैं कहता पता नहीं कदों मुक्केगी नमाज ते कदों जान छुटेगी।
आज भी लोग यही सोचते हैं इन्हों के गीत नहीं मुकते, इन्हों का मैसेज बहुत लंबा है, इनकी दुआएं बहुत लंबी हैं। और मैं वहां पर उनके साथ बैठा दुआ करता करता उठ गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने वहां पर कमरे में दुआ करना शुरू की। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने यीशु से ये कहा कि यीशु मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ, अब मेरे ईमान का तकाजा ये है कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तो दुराने दुआ मेरा कमरा रोशन हो गया और मेरे कमरे में इस कदर नूर था कि मेरी आंखें खुली हुई थी। और मेरे अजीजों याद रखे मेरा और आपका यीशु मेरे कमरे में मौजूद था और मुझे कह रहा था मेरा काम करे और मेरे नाम को जला दे, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजूद होंगे। हालेलुया। भाई जब मेरे लिए आ सकता था यीशु तो तेरे लिए आ सकता है, बशर्ते आप उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। आप मेरी गवाही से वाकिफ होंगे। शायद आप में से कितने लोग जानते हैं मैं मर के जिंदा हुआ हूं। प्रेज़ लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे। जो नहीं जानते उनके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने घर से निकला तो तबीयत नासाज थी, तो एक डॉक्टर के पास चला गया। वहां पर एक बहन बैठी हुई थी, उसके पास एक एक्सपायर इंजेक्शन था, उसने मुझे लगा दिया। जैसे जैसे वो मेरे बदन में सर्वाइव कर रहा था, मेरे बदन से मेरी जान निकल रही थी और मैं उस जगह पर डेड हो गया। और मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने अपनी रूह को अपने बदन से निकलते हुए देखा, लेकिन तब मैं यीशु पर ईमान ले आया था। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं यीशु पर ईमान ले आया था और मैं ये कह रहा था अपनी रूह को निकलते हुए कि ठहर जा और मुझे अभी यीशु का काम करना है, उसके नाम को जलाल देना है। तो उस हॉस्पिटल के अंदर मेरा और आपका यीशु मौजूद हुआ और वो मेरे सर के पास खड़ा था। उसने मेरी रूह को मेरे बदन में वापस भेजा और कहा उठ और मेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। ईमान लाने वालों के दरमियान में फिर वास्ता है। ईमान लाने वालों के दरमियान में आज जितने ईमानदार यहाँ पर मौजूद है वो अपना अपना मौजूदा लेकर जाएंगे मेरा ईमान है। और यीशु आपकी जिंदगी में आज कसरत से काम करेगा। मेरे लिए याद रखिए, मुझे बहन की बात सुनकर खुशी हुई। कहती ऐसी थकन वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वक्त को मद्देनजर रखें और खुदा के नाम को जला दें। एक और बहन की गवाही आपके साथ शेयर करते हैं। इसको मिर्दे के अंदर कैंसर था और ये खादमीन से दुआएं करवा रही थी और जानते हैं उसकी खाने वाली नाली जो है उसको काट दिया गया था। और डॉक्टर ने कहा कि ये चंद दिनों की मेहमान है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो उस बहन के पास एक आप जैसी बहन बैठी हुई थी। उसने कहा अगर तू चाहे तो तू जिंदगी पा सकती है। हालेलुया। उसने कहा हाँ मैं जिंदगी पाना चाहती हूँ। तो उसने कहा तुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? यीशु के पास। उसने कहा मैं तैयार हूँ, मैं जिंदगी पाना चाहती हूँ, किसी के भी पास ले जा। तो वो कहती चल मैं आज तुझे जिंदगी दिलवाऊंगी। वो उसके साथ इबादत में चली गई। कहती जब खादमीन मेरे लिए दुआ कर रहे थे तो उनके हाथ मेरे ऊपर भरे हुए थे और उनके हाथों के ऊपर मैंने एक हाथ को देखा जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहती जब मैंने उस हाथ को देखा तो वो हाथ उनके हाथों में से मेरे बदन पर उतर आया। कहती जब वो मेरे बदन में उतरा तो उससे वो मेरी रूह में उतर गया। जब वो मेरी रूह में उतरा तो मैं जान गई कि अब मैं जिंदगी पा गई हूँ और यीशु के नाम को जलाल देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी वो खाने की नाली की जगह प्लास्टिक की नाली है। 7 साल गुजर गए हैं, यीशु की गवाहियां देती है और यीशु के नाम को जलाल दे रही है। क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान में आगे हालेलुया, ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजज़े होंगे। इसका मतलब दोनों तरफ ईमानदार चाहिए। लोकी पादरी रिजेक्ट करी जाते अपने ईमान को टटोलते नहीं है। किसी को ना बुलाओ, अपने घर चुक जाओ। मेरा ईमान, अगर आप ईमानदार हैं तो यीशु आपके घर में होगा।
हालेलुया। मैंने उसको देखा, मैं उसका शाहिद हुआ कि जब आप ईमानदार होंगे तो यीशु आपकी जिंदगी में मौत के सर को उठाने से पहले आपकी जिंदगी में मौजूदा कर देगा। मेरी जिंदगी खुदा के मौजूदों से भरी पड़ी है, मेरे पास अनगिनत गवाही है। मैं बशर्तिया कहना चाहता हूँ, आप सुबह तक बैठे रहे, मैं गवाहियाँ सुनाता और गवाहियाँ खत्म नहीं होगी। और मेरे अजीजों याद रखिए, जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं तो यीशु की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती है। यहाँ स्टेशन पर एक बहन है, जब उसकी शादी हुई तो वो इस्लामाबाद से यहाँ पर आई तो कहने लगे भाई ये बदरूमा नकाइयाँ गईयाँ ने, ये नहीं निकलनियाँ। तो भाई मेरे पास रहा, कहने लगा पादरी साहब मैंने बड़े खादिमों से दुआ करवाई है, बड़े बाबों पीरों के पास भी गया हूँ, लेकिन मैसेज मुझे ये मिला है कि जो बदरूमा नकाइयाँ जानना तो फिर निकलतियाँ नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखते हैं ये क्या है। मैंने उस बेटी को बुलवाया, मैंने कहा तू यीशु पर ईमान लाती है? कहती हाँ मैं यीशु पर ईमान लाती हूँ। मैंने कहा अगर तू यीशु पर ईमान लाती है तो आज ये निकलेगी और यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। वो भाई कह रहा था मैं परेशान हूँ, 1 साल होने को आ गया शादी को, मैं खुद इससे डरता कांपता फिरता रहता हूँ, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैंने कहा आज अगर यीशु पर ईमान लाया है तो सुकून लेकर जा। उसने यीशु पर ईमान लाया तो आज वो 2 बच्चों की माँ है और यीशु ने उसे आजाद कर दिया है। इसके अंदर नस्ल है, मैंने कहा यीशु नस्लों का खुदा। हालेलुया। कहीं दे अंदर लश्कर है, मैं क्यों लश्कर का खुदा है जिस पर मेरा ईमान है। मेरी चीजों याद रखें, अगर आज रात आपका ईमान यीशु पर है तो आप यहाँ से खाली होकर जाएंगे और अपना मौजूदा लेकर जाएंगे। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे चीजों याद रखिए जो यीशु पर ईमान लाते हैं ओ आग भी उनको नहीं जलाती। हालेलुया। पानी भी उनको नहीं डुबोता, मछलियां भी उनको नहीं गिराती, क्योंकि उनका ईमान किस पर है? यीशु पर। आप जानते हैं योना अरब के साथ क्या हुआ? एक गरम देग की गई जिसमें तेल गरम डाला गया, और जानते हैं ये सजा किनको दी जाती थी? जिनसे वो सख्त नफरत करते थे, और उसे उस गरम देग में डालने लगे जो कि तेल